मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। It's my great privilege to welcome Padma Shri and Sangeet Natak Academy awardee, famous Kathak Natya Guru, Dr. Shovana Narayan ji. On behalf of Bharatiya Shikshan Mandal, I welcome her to this online series of program to celebrate the spirit of Guru Shishya Parampara. Dr. Shovana ji is known for her performance and outstanding work in the field of Kathak. She has been awarded prestigious Padma Shri Award in the year 1992 and Sangeet Natak Academy Award in the year 2001. She is the recipient of over 30 prestigious national and international awards. That includes Delhi government's Parishad Sanman Award, Japan's OSCA Award, Bihar's Gaurav Award, etc. Shovana ji's multifaceted personality and has left her incredible imprint as a performer, choreographer, guru, researcher, organizer, and an author. She has pioneered the dance enactments to the philosophical themes based on the lives of contemporary thinkers, sages such as Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, and Ramana Maharshi. She has been the creative director, choreographer of several international events such as the opening and closing ceremonies of the 6th International Olympics 2003, Commonwealth Games 2010, Tercentenary of Guru Gobind Singh Khalsa Panth 1999, also classical dance segment of the Golden Jubilee celebrations of Indian independence at National Stadium in the year 1997. She has authored more than 16 books and numerous articles for UNESCO and other prestigious organizations. All of these were well-researched publications based on the epigraphical research and are valuable sources of information. She has also made a film on philosophical aspect of Khajuraho titled Dance of the Temples. Dr. Shovana ji is also a visiting lecturer to several universities in India and abroad, and she has given several hundreds of lecture demonstrations and motivational workshops across the globe. Today, she is going to take us through the journey of Kala Guru Parampara and enlighten us in her speech on the Kala Jagat में Guru Tattva की महिमा. Now to Dr. Shovana Narayan ji. नमस्कार। मैं भारतीय शिक्षण मंडल और उसके सभी जनों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे याद किया और ये इस तरह की श्रृंखला जो आपने सीरीज़
ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें इंटरैक्शंस हैं, बातचीत है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, बहुत ही विख्यात कवि हैं, और आनंद अग्रवाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी दर्शक और श्रोतागणों को भी मैं नमस्कार कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। आज का विषय है कला जगत में गुरु तत्व की महिमा। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। इसका मतलब क्या है, मैं आज इस पर ही चर्चा करूंगी आपके साथ। और शुरू में मैं शुरुआत कर रही हूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी मेरे लिए गुरु तो ईश्वर समान है, उनमें पूरा विश्व समाया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरा सृजन की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनमें समाई हुई है। क्योंकि जो शब्दिक गुरु है उसमें निहित है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश लाना, टू रिमूव द इग्नोरेंस। तो जो हमारे अज्ञान को दूर करता है और जो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, ज्ञान की ज्योति जलाता है, वही गुरु है। हम सबके जीवन में कई गुरु आते हैं और कला जगत में तो हमारे लिए तो बहुत पूजनीय है गुरु। इनफैक्ट एक जो हम शुरुआत ही करते हैं, एक प्रणाम करके, एक चरण स्पर्श करके, उसमें एक ह्यूमिलिटी है कि मैं उनके आकार के सामने झुक रही हूँ, क्योंकि हम तो सिर्फ पात्र हैं, उनसे ले रहे हैं। और लेकिन हम इस पात्र को भी वैसे होना चाहिए जिसमें लेने की क्षमता हो। उसके जो गुरु दे रहे हैं उसकी सीख को पूरी अच्छी तरह से वे उसका ग्रहण कर सके। हम सबके जीवन में बहुत गुरु आते हैं। सबसे पहला तो गुरु है जिस तरह से जिन्होंने हमें जीवन प्रदान दिया, क्योंकि गुरु जीवन प्रदान भी करता है। तो जो गुरु ने हमें जीवन प्रदान दिया वो हमारे माता पिता हैं। और सबसे पहली शिक्षा तो घर में ही मिलती है। वो किस तरह से बोल रहे हैं, वो किस तरह से उनका व्यवहार है, क्या हाव भाव है, हम बचपन से ही उसका बिना जानते हुए, बिना समझते हुए वो ग्रहण कर रहे हैं। तो वहाँ वो गुरु तत्व आ जाता है। क्योंकि तत्व का मतलब क्या है? तत्व, द एसेंस ऑफ लर्निंग। और जब गुरु तत्व फिर वहीं से हमें मिलना शुरू हो जाता है, तो बाद में जा कर के एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है जिसमें स्किल्स हमें दिया जाता है। एक स्किल तो घर में मिलता है, जीवन में किस तरह से हम उसको करें वो स्किल्स, लेकिन कला जगत में भी और वैसे भी सभी जगतों में भी हमारे जो शिक्षक प्रणाली हैं, उस शिक्षा प्रणाली में जो हमारे गुरु हैं, वे सभी कुछ न कुछ दे रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं, टेक्निकल स्किल दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के कई आयाम दे रहे हैं। और उसमें अब कितना एक्सेलेंस हम में करते हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कला जगत में ही दे रहे, तो हम तो कहते हैं कि हमारे लिए कला तो योग साधना है।
इनफैक्ट योग साधना से भी बढ़ के है, क्योंकि जिस तरह से पातंजलि ने वो 8 आयाम में योग साधना की परिभाषा दी है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो हमारे सीखने की प्रक्रिया में भी और जीवन में आगे जाकर उसके जाने की प्रक्रिया में भी हमें वो काम आता है। गुरु हमें वो जीवन में चुनौतियां बहुत आती हैं, वो चुनौतियों का सामना कैसे करा जाए, किस तरह से करा जाए, वो ज्ञान तो है लेकिन साथ साथ रीजनिंग भी है कि नहीं, विजडम है कि नहीं, एक जुडिशियसनेस है कि नहीं, वो भी ज़रूरी है। और यहाँ मैं अपने कला जगत में आ रही हूँ कि हम किस तरह से उसको देखते हैं, उसका प्रमाण मिलता है। अगर हम देखें कि जब जो पहला ही है यम में ही अगर सबसे पहले गुरु हमें जब सिखाते हैं तो फिर एक देखते हैं कि वो पात्र किस तरह का है, उसका स्किल क्या है, उसकी ऑनेस्टी क्या है। वो ऑनेस्टी एक सिर्फ झूठ बोलने वाली नहीं है, ऑनेस्टी टू वन सेल्फ, अपने प्रति ऑनेस्ट कितना है, अपने प्रति अपनी जो दृढ़ता है उसमें कितनी ऑनेस्टी है, डिवोशन में कितनी ऑनेस्टी है, उस ज्ञान प्राप्ति के लिए एक जो प्यास है उसमें कितनी ऑनेस्टी है, ये सब गुरु देखते हैं। और फिर हम तो तभी जाकर के उनका चरण स्पर्श करते कि हमने तो अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, अब आपसे हमें लेना है। तो वहीं से हमारी यम की प्रक्रिया चलती है। हम नियम पे आते हैं। अब नियम में भी जब हम देख रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे तो हैं, जीवन के भी कायदे हैं, घर में कायदे हैं, हमारे कला जगत में के सीखने की प्रक्रिया में कायदे हैं, तो वो हम देखते हैं। और उस सीखने की प्रक्रिया में गुरु और पात्र, शिष्य, दोनों का ही बहुत अहम योगदान है, क्योंकि गुरु जो बताते हैं उसको तो हम ध्यान से हमें सुनना है, बहुत ही ध्यान के साथ। और वो उसमें इनफैक्ट मैं अभी अपनी बात को थोड़ा सा काटूंगी और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जब हम सबसे पहले गुरु के पास गए और हमारी और गंडा बांधा गया, वो जो हम लोग मौली धागा, क्योंकि उस मौली धागा का भी एक बहुत एक है कि इनिशिएशन जो है, इनिशिएशन जो हम कर रहे हैं इनटू द फील्ड ऑफ डांस, इनटू द फील्ड ऑफ कथक। मैं तो कथक की नृत्यांगना हूँ, मैं कथक की पुजारी हूँ, मैं कथक की सेवक हूँ, साधक हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ। सिर्फ मैं वही पुजारी हूँ, वही सेवक हूँ, वही साधक हूँ, और पिछले 6 दशकों से ऊपर वो साधक रही हूँ, चली आ रही हूँ, और आखिरी दम पर कला की सेवक रहूँगी, पुजारी रहूँगी, साधक रहूँगी। और इस सफ़र में हमारे गुरुओं ने बहुत योगदान, उनका योगदान बहुत रहा है। मुझे याद है मैंने कहा कि जब हमने शुरू किया था सीखने के लिए, तो एक हमारे यहाँ प्रक्रिया है कथकों में कि हमारे हाथों पर, कलाइयों पर मौली धागा बांधा जाता है, जैसे कि, लेकिन उसका मतलब है, उसका मतलब ये है कि अगर एक तो है कि हम ज्ञान से जुड़ जाते हैं, वो हमारी जो कथक ज्ञान है, और उस कथक में तो मैं बाद में आऊँगी इस पर कि पूरा विश्व ही इसमें समाया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जब हम निकलते भी हैं
तो वो धागा जो है कि गुरु हमारे साथ हमेशा रहेंगे नहीं, लेकिन उनकी सीख, वो जो विद्या हमने हासिल की है, जो हमने मूल्य हासिल किए हैं, वैल्यूज़ हासिल किए हैं, वो गुरु हो हमारे माता पिता हो या हमारे कथक के गुरु हो या कोई भी गुरु हो, जो वो हमारे साथ हमेशा रहता है। और वो ये जो हमारे मौली धागा है वो हमें बांध के रखती कि आप इस सीख को रखिए और उस पर आगे बढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि आप वहीं रह जाएं, तो आगे बढ़िए। तो ये जब बात पूजा चल रही थी, तो हमारे यहाँ उस ज़माने में कथकों में एक बहुत ही खूबसूरत एक ट्रेडिशन था कि गुरु अपने हाथ से पहले तो चना खिलाते हैं और बाद में गुड़ खिलाते हैं। अब उसका बहुत ही डीप मतलब है, और उसका एक मतलब है कि, और वो श्लोक है यद्यपि चणकस्य पूर्वाशः काठिन्ययुक्त तथापि चर्वण क्रियया उत्तम स्वाद प्राप्यते तथा यथा गुड़ सादृश्यम उत्तम फलदायी भवति प्रकृते गुरो काठिन्यम भूते सति तेन सदैव हितकरम फलम प्रदीयते तथा। यानी कि जिस तरह से चना चबाने में एक मेहनत होती है, लेकिन वो चबाने के बाद उसका स्वाद आने लगता है, उसका हम चने का रसा स्वादन करने लगते हैं, वो गुड़ के मिठास की तरह है। और वो जीवन में अगर जो भी आप हासिल करना चाहे उसमें मेहनत तो बहुत है, लेकिन बाद में उसमें जो आनंद आता है, उसका जो रसा स्वादन है, आनंद प्राप्ति का रसा स्वादन है, वो अद्भुत है और वो जीवन में आपके साथ साथ चलती जाती है। तो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत ही खूब रहा है और हमें आज तक याद है, मुझे अभी आज तक याद है कि किस तरह से, और उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे बड़े होते गए उसकी वैल्यूज़, उसका हिडन मीनिंग समझ में आने लगा और बहुत ही खूबसूरत था। और वही है कि जब हम सीख रहे हैं तो वो कठिन लगता है, बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि इतने नियम हैं, इतने कायदे हैं कि आप किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन वो गुरु गाइड करते रहते हैं। और गुरु को भी, जब मैं बात कर रही थी कि गुरु भी का भी एक है कि गुरु को समझना है कि पात्र किस तरह का है। पात्र जो है वो हर पात्र एक समान नहीं है, और उसी तरह से कला में भी, क्योंकि आज मैं खुद ही सिखा रही हूँ, गुरु कहना तो मुझे अपने आप को कहना नहीं चाहिए, बच्चे लोग बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं तो अभी भी सीख रही हूँ, जीवन के प्रणाली में पूरा अभी भी सीख रही हूँ, तो उसमें कि किस तरह से हर एक पात्र अलग है, उसके कैरेक्टर्स अलग हैं, उसके डील डॉल अलग है, तो हम उसके हिसाब से किस तरह से उस पात्र को समझना भी एक गुरु का काम है। और उस शिष्य को भी ये समझना है कि हमारे गुरु किस तरह से हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो एक ये है कि हम उनको प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, एक डायरेक्ट एक विद्या से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन के साथ, ऑब्जर्वेशन से और हम उनको सुन करके भी, उसकी याद करके भी हम बहुत सीखते हैं। तो गुरु वही है कि जो आपको दे विद्या, आपकी क्यूरियोसिटी को भी समझे, उसको कर्ब ना करें,
और साथ ही साथ जो पात्र है वो भी अपने गुरु के जो उन्होंने कहा है, जो शिक्षा दी है, उसका खूब अच्छी तरह से अध्ययन उसका करे, मनन उसकी करे, साधना करे, तभी तो वो अपना सकते हैं। उसमें अब आप उसको अपने जीवन का एक अंग बना सकते हैं। तो ये दोनों, इट्स अ टू वे रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ सिंगल वे रिलेशनशिप। और फिर अगर क्वेश्चंस हो, बहुत ही कई बार पात्रों के भी क्वेश्चंस आते हैं। मुझे भी याद है कि कई बार मुझसे कहा गया था कि जब मैं सिखा रही थी शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, अब पद्मनाभम की जो है हमारे नाभि से पद्म निकल रहे हैं, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो इस पर मुझे हमारे शिष्यों ने पूछा क्यों, इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो हर एक आइकोनोग्राफी पर भी हमारे पात्र, हमारे डिसाइपल्स, शिष्य आए, उन लोग पूछते रहते। और ये अच्छी बात है, गुरु को भी इनकरेज करना है, क्योंकि गुरु भी साथ साथ वो बढ़ते जाते हैं, उनकी भी नॉलेज जो है किसी पर सीमित नहीं है। तो गुरु तत्व में है कि वो सरस्वती, उसकी गहराई बहुत है। आप एक दरवाज़ा खोलेंगे तो दूसरा आपको मिलेगा, सामने आपको लगता है कि प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति, लेकिन नहीं, आगे जैसे आप जाएंगे एक और दरवाज़ा मिलेगा, उसकी चाबी आपको ढूंढनी है, उसको खोलेंगे तो और आगे जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक तो है कि ट्रेडिशनल गुरु की जो वो गुरु ही आपको दे सकते हैं, तर्क वितर्क हम कर सकते हैं, तर्क ये हम उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस, क्वेश्चन एंड आंसर, जिसको संस्कृत में हम लोग कहते हैं कि ओह उपवह, सब कुछ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब इस पर लेकिन सिर्फ हम सीमित नहीं हैं हमारे गुरुओं से, जिससे हमने ग्रहण किया है शिक्षा। आगे हमारे और भी है, जीवन में कोई भी आ सकता है वो गुरु, और उनसे हम सीख सकते हैं। और इस पर मुझे याद है कि हमें पढ़ना भी बहुत चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृति में बहुत कुछ रखा हुआ है। जब पढ़ाई की बात आती है तो कला जगत में हम कला के द्वारा हम अपनी भारतीय दर्शन शास्त्र का पूरा ज्ञान हमें मिलता है, हमारे संस्कृत साहित्य का पूरा ज्ञान मिलता है, और हमारे जो भी वर्नाक्युलर है, क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट की हूँ, तो हमारे हिंदी अवधि के जो है पूरा उसके साहित्य का ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से हमारे कला जीवन में ज्ञान प्राप्ति की सीमाएं बंधी हुई नहीं है। सिर्फ हम आयाम कर रहे हैं और वो तोड़े टुकड़े कर रहे नहीं, पूरा। और हमारे साहित्य के ज़रिए हमें ये भी ज्ञान प्राप्ति हो रही है, हमारे दर्शन शास्त्र के ज़रिए ये भी हमारे बेसिक मूल्य जो है वो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ की ज्ञान प्राप्ति हो रही है। कोई भी हो, कहीं भी विश्व के कोने कोने में हो, चले जाए, चीज़ वही है कि आप सच्चाई पर रहें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, भेदभाव ना करें, वायलेंस ना हो, हिंसा ना हो, अहिंसा प्रैक्टिस करें, सद्भावना रहे, सेंसिटिविटी रहे, मानवता रहे। ये विश्व के हर एक कोने में है, लेकिन आप और हम रोज़मर्रा के जीवन में, क्योंकि कहीं न कहीं अहम आ जाता है, एगोइज्म आ जाता है, और एक भय आ जाता है, उसके कारण सब विकृतियां आ जाती हैं। तो ये वैल्यूज़ कुछ और सिखाते, लेकिन हम उस वैल्यूज़ को नकार के आगे कैसे बढ़ते हैं, तो वो गुरु तत्व को हम उस वक्त भूल जाते हैं। जहाँ विकारों को हमने अपना लिया, हमने उस गुरु तत्व को अलग कर दिया।
इस पर हमें सब के जीवन में इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। और सबसे बड़ा ये क्यों आता है? क्योंकि भय और भय ऐसा प्राणी है जो कि हमको जकड़ के अगर जकड़ लेता है तो शायद हमारे अंदर की जो मानवता है, जो इंसानियत की भावना है, जो संवेदना की भावना है, उसे भी कहीं हमसे दूर कर देता है। ये भय नहीं होना चाहिए। तो गुरु तत्व में जो गुरु ज्ञान है, वो जो प्रकाश है, वो ज्ञान की प्रकाश है कि आप उस भय से आप दूर अपने आप को कीजिए। एक तो है अज्ञान का भय, एक है किसी चीज़, हर एक चीज़ का भय हो सकता है कि कोई मुझ पर हावी ना हो जाए, उसका भय, कि मैं कैसे कहूँ, अपने एक इनसिक्योरिटीज एक अंदर होता है, उसका भय। चुनौतियों से भय, क्योंकि हम चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं तो उसका भय। अगर हमारे कोई मेंटर और गाइड अगर नहीं रहे साथ तो हम कैसे अकेले जाएं, उसका भय। क्यों? और कई किस्म के भय हैं, लेकिन क्यों अपने, क्योंकि जब आपको गुरु ने, हमारे कला जगत ने गुरु ने जो सीख दी है उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। कला जगत में की बात जब हो रही है और ये भय की बात हो रही है तो मुझे एक वाकया याद आता है। बहुत 90s के दशक में, जो 1989 से 2003 तक महात्मा गांधी के पोते जो बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे, प्रोफेसर रामचंद्र गांधी, जिनको हम प्यार से रामू भाई भी कहते थे। रामू भाई मुझे एक छोटी बहन मानते थे, कहते थे मेरी बड़ी बहन तारा है तो तुम मेरी छोटी बहन हो तो सितारा हो मेरी। तो हम लोग बैठ के अपने भारतीय दर्शन शास्त्र और हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र और हमारे इतिहास में जितने गुरु हैं उनके जीवनी को लेकर के हम लोग छोटे छोटे डांस प्लेस किया करते थे। तो उन्होंने मेरे लिए 7 डांस प्लेस किए और हम लोग ने उस पर किया, मैंने काम किया। अब एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने मेरे ग्रैंडफादर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है? तो मैंने कहा हाँ, जैसे सभी लोग हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो रंभा कौन है? अब मैं जरा असमंजस में पड़ गई कि रंभा कौन है। मैं कलाकार हूँ, एक नृत्यांगना हूँ और मुझे मालूम है कि रंभा एक बड़ी अप्सरा थी और नृत्यांगना थी। तो ये रंभा कौन है महात्मा गांधी के जीवनी में? तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, बस एक छोटा सा, और वो भय के ऊपर कितना सब कुछ कहता है और कहाँ से गुरु तत्व की प्राप्ति होती है उसका मालूम नहीं। It's not a formal piece of education that you have to get it from here or from there. और उन्हें उसका एक छोटा सा जो पैराग्राफ है उसमें है कि जब मैं छोटा था मुझे सांप और घोस्ट, भूत पिशाच और चोरों से बहुत डर लगता था। अब क्योंकि वो शायद उस समय बहुत छोटे थे, वो 8-9 साल के थे, तो कह रहे थे कि मैं किससे कहूँ, अगर भाइयों से कहता हूँ तो फिर उन लोग सब हंसेंगे, मेरे मजाक उड़ाएंगे। माँ बाप को कहते तो वो भी कहेंगे, डांट देंगे कि भाई क्यों डरते हो, कितना डरपोक क्यों हो, किसको कहूँ। और मैं भय से जकड़ा हुआ था, एकदम उसके गिरफ्त में था। तो उनके घर में एक कोई अनटचेबल, एक कहा डायरेक्टली तो नहीं कहा लेकिन लगता है कि अनटचेबल मेड सर्वेंट थी, उसका नाम रंभा था। तो उन्होंने रंभा से कहा, तो रंभा ने कहा ऐसे अपना काम करते हुए, क्यों घबराते हो, राम का नाम लो। उन्होंने कहा कि रंभा ने तो ऐसे किया, कहा कि विश्वास के साथ राम का नाम लो। अब उन्होंने कहा कि मैंने उस राम के नाम को
ऐसा अपने आप में अपना लिया कि मुझे उसमें एक फेथ हो गया, एक विश्वास हो गया, और मुझे उससे एकदम मुझे स्ट्रेंथ मिली, मुझे बल मिला, मुझे ताकत मिली। और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि मैं कभी रंभा को भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक उन्होंने गुरु का एक पदवी दे दिया। डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली, कि आज तक मैं राम का नाम ले रहा हूँ। तो देखिए कहाँ गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक फॉर्मल एजुकेशन में ही हो, जीवन में कहाँ से आपको गुरु तत्व की प्राप्ति मिल जाए, जो कि आपके जीवन की धाराओं को, मूल्य को बदल दे और आपको एक अच्छी दिशा में ले जाए। इम्पोर्टेंट है कि दिशा अच्छा है कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। गुरु तत्व में भी द इम्पोर्टेंस इज ऑफ द क्वालिटी ऑफ दिशा। सो इन फैक्ट जब हम बात कर रहे हैं गुरुओं की, तो गुरु तत्व में और कला जगत में क्वालिटी, गुरु हमेशा बात कर रहे हैं क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। मान लीजिए एज अ कलाकार मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं मन से खुश नहीं हूँ, अंदरूनी मुझे वो आनंद ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो वो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में से वो गुरु तत्व की एसेंस को हम मिस कर गए। और आप देखते होंगे कि एटलीस्ट मैं नॉन कमर्शियल कला की फील्ड की बात कर रही हूँ, कि हमारे कला जो है पर्टिकुलरली साहित्य और शास्त्रीय नृत्य की विधा है, वो एकदम उसमें कमर्शियलिज्म नहीं है। और वहाँ आप देखेंगे कि ज़्यादातर इतने जीवन की कठिनाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, चुनौतियों पे चुनौतियाँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी इन कलाकारों के चेहरे पर एक मुस्कान है, इन कलाकारों में एक पॉजिटिविटी है, और वो पॉजिटिविटी, वो एसेंस है, दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि जिस तरह से गुरु ने हमें दिया। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस इन आवर लाइव्स, क्योंकि अगर हमने उसी को नहीं समझा तो हमने समझा क्या। और ऐसे आज भी मैं देखती हूँ कि लोग गुरु हॉपिंग जाते हैं। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि आपके टेक्निकल नॉलेज में भी है, आपके किसी भी जीवन में सिर्फ कला से ही में सीमित नहीं है, लेकिन अगर आप उसको टेक्निकल अगर नॉलेज में भी जाएं, तो वो चाहेंगे कि फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि ये फील्ड वो फील्ड हम स्पेशलाइज। तो यू आर इन अ वे गोइंग फ्रॉम वन गुरु टू द अदर। लेकिन जो एक भक्ति है, जो द एसेंस है, जिसने आपको वैल्यूज़ दी है, वो गरीब माँ बाप भी हों और वो उन्होंने वैल्यूज़ दिया है, तो वो सबसे बड़े गुरु हैं। अगर गरीब माँ बाप ने आपको बचपन में भी वो गलत रास्ते से सही रास्ते का मार्गदर्शन नहीं दिया, तो शायद सोचना पड़ता है। तो इवन द क्वालिटी ऑफ गुरु है, उसमें अहम नहीं होना चाहिए, ना पात्र में अहम होना चाहिए, ना गुरु में अहम होना चाहिए, ना ये होना चाहिए कि हम और अगर कैसे कहें कि मैं जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ। जहाँ उसने ये सोचा तो फिर वहाँ ढलान शुरू हो जाती है, तो गुरु तत्व एब्सेंट हो जाता है। और कला जगत में हम तो ये भी मानते हैं कि गुरु जो देता है वो है कि आप एकदम कार्बन कॉपी ना हो, आप सब कुछ लीजिए। कला जगत से हम लोग को अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान मिलता है। हम लोग, हमारी जड़ें मजबूत हैं
एकदम हमारी भारतीय संस्कृति में हम अपने शास्त्रों से वाकिफ़ हैं, उसमें भी हमारे जड़ें मजबूत हैं। हम ऊपर नहीं खेलते हैं कि ऐसे ऐसे ज्ञान नहीं। तो कभी कभी जब हम देखते हैं चारों तरफ, सुनते रहते हैं, तो हम लोग सभी बैठ के मुस्कुराते हैं कि एक्चुअली मतलब तो हमारे शास्त्रों का कुछ और है, और हम जो आम जिंदगी में जो लोग हैं वो किस तरह से उसका मतलब निकाल रहे हैं। तो फिर हमारे जो गहराई है, यानी कि गहराई, हमारे कला जगत में गुरु कहते हैं हर गुरु हो कि गहराई में जाओ। जब तक वो गहराई में नहीं जाओगे, जो कि मैंने अर्चना गुण का कहा था, गहराई में नहीं जाओगे तो फिर उसका रसास्वादन नहीं होगा। ऊपर ऊपर छलकने से ना आप यहाँ हैं ना वहाँ हैं। तो गहराई की बात होती है, रीजनिंग की बात होती है कि आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इस तरफ से उस तरफ से। कई बार हम लोगों ने खुद ही अपने गुरुओं से पूछा है कि अगर हम ताथे थी तत् कर रहे हैं ऐसे, क्या तत्त थी ऐसे ही करें कि और भी क्यों नहीं और हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एस्थेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू अप्रोच इट। तो फिर ये जो एस्पेक्ट्स हैं कि आपको अपने आप रीजनिंग करने का मौका, कि आपने 10 चीज़ों को देखा, लेकिन एक और जहाँ आप और अपना एक निष्कर्ष निकाला और तर्क वितर्क किया गुरु से, कि आपने रीजनिंग की कि आप ये सही है कि ये, और फिर उसमें से अपनी जो है वो एसेंस, वो अमृत निकाला। उस अमृत मंथन में आपने अमृत निकाला, तो वहाँ गुरु तत्व आ जाता है। और कि जो कहा है, सुनी सुनाई बातें हैं, उसी को मान करके हम आगे चले, ये हमारे कला जगत में हमें कहा जाता है कि इस पर वैसा ना करें। आप उस पर गहराई में जाइए, सोचिए क्यों कहा गया है और कैसे कहा है। अगर इस शास्त्र ने ये कहा है तो क्या दूसरे शास्त्र ने उसका कोई कमेंट्री दे करके कुछ और कहा है, तो आगे क्योंकि वो बढ़ती जाती है, उसके डायमेंशंस बढ़ते जाते, तो हमें एक बैनियन ट्री के नीचे एक कि आप वहाँ वैसे ही कि ऐसे है, एक जो सीधी चल रही है, जो ध्रुव तारा की तरह है, वो बेसिक वैल्यूज़ ध्रुव तारा की तरह कि सच्चाई, अहिंसा, आप अपने आप में एगोइज्म और ये सब को दूर कीजिए। तो ये सब तो ध्रुव तारा की तरह है, लेकिन बाकी आपको अपने आप को किस तरह से आपने अपनी पर्सनालिटी को एनहांस किया है, किस तरह से आपने वो सीख ली है, और अपने आप उसको आप एक दूसरा पौधा बन करके गुरु की महिमा को रखते हुए, उनकी सीख को रखते हुए, उसकी आत्मा को रखते हुए आप आगे उस कैसे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं, उसकी महिमा को रखते हुए, उसकी एसेंस को रखते हुए, आत्मा को रखते हुए आप किस तरह से ले जा रहे हैं, तो वो खोलने और प्रफुल्लित होने का काम वो भी हमारे कला जगत में कहा जाता है। और ये जो अज्ञान दूर कर रहे हैं, तो उस अज्ञान में क्या आता है, उसमें अविद्या, अज्ञान, उसमें है अस्मिता को दूर करना। मतलब आपके अंदर एगोइज्म है, उसे दूर करें। आपके अंदर कोई राग की भावना हो, पैशन हो, मतलब एक पैशन होता है, एक जुनून होता है काम के लिए, और एक अलग किस्म का, वो उससे भी अगर आप मतलब सीमित रूप में रहें, मतलब कि उसको भी दूर करें, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उससे दूर करें। द्वेष, जो द्वेष आता है कि जब हम दूसरे की, और फिर और दूसरी चीज़ है कि एक ईर्ष्या, कि ईर्ष्या की भावना से दूर रहे, क्योंकि ये सब हमारे
कैरेक्टर की बढ़ोतरी में काम नहीं आता है, बल्कि वो सब हमको हमारी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को नीचे ही ले जाता है। और जो एक सेल्फ प्रेजर्वेशन की भावना है, अभिनिवेश जिसको हम कहते हैं, वो उससे भी मतलब कि आप उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम उस इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन में ऐसा कुछ करें कि हमें जो मूल्य वैल्यू से दूर हमें कर देता है। और इसमें सेल्फ प्रेजर्वेशन में आ जाता है एगोइज्म, और तो वो से भी हमें दूर रहना चाहिए। ये डेफिनेटली दीज आर द एस्पेक्ट, दीज आर द वैल्यूज़ कि जो हमें हमारे गुरु तत्व का एक हिस्सा है, जिसको हमें हमेशा साथ रखना चाहिए। और कला जगत में तो हम कहते हैं और वो किस तरह से प्रैक्टिस होता है, लेकिन कभी कभी ये जो आम जिंदगी में हम लोग देख रहे हैं कि हम इसका शायद कहीं इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इसे हम भूल जाते हैं और एक अलमारी में लेकर के बंद कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, अपने एक जीवन का एक अंग बना देना चाहिए। और तभी तो सेंसिटिविटी के साथ, मानवता के साथ ये और एक सर्वजन भाव के साथ, डिविजिवनेस के साथ नहीं, क्योंकि वही एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सबके व्यूज़ को लेकर के आगे चलना। वो जो हमने कहा कि गुरु और शिष्य में भी चर्चा होती है, डिस्कशंस होता है, तो वो ज़रूरी है, वो वार्तालाप ज़रूरी है, उसको लेकर के आगे बढ़ना। यही तो सब है जो गुरु तत्व में आता है। और हमारे कला जगत में हम इस पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे शास्त्रीय नृत्य कला जगत पे कि हम इस पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि इससे हम ही सबको फ़ायदा हुआ है। और हम लोग जीवन के हर परिस्थिति, हर चुनौतियों का सामना करने में हमारी क्षमता रही है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो भी मुस्कुराहट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, कि कुछ भी सीमित नहीं रहती एक्सेप्ट फॉर द बेसिक वैल्यूज़। हम लोग उसी को भूल जाते हैं और बाकी चीज़ों को कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको ये समझ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज़ है उस पर हमें कला जगत में वो गुरु तत्व मिलता है। आज बहुत हम देखते हैं कि गुरु हॉपिंग होती है कि यहाँ जाए वहाँ जाए, लेकिन कभी कोई भी जिस गुरु ने आपको बेसिक्स करके पैर पकड़ करके सिखाया है, खड़ा किया है, आइडेंटिटी दी है, वो हमेशा श्रद्धा के पात्र हैं। वो उनको आप श्रद्धापूर्वक हमेशा नमन करें, क्योंकि उस श्रद्धा में भी बहुत शक्ति है। उन्होंने जो दिया है, उनकी सीख में बहुत कुछ शक्ति है, और उसको आप हमेशा या अपने ध्यान दे करके उसको रखें। और एक और चीज़ है कि मैं कहना चाहूँगी कि ब्लाइंड फेथ, दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ब्लाइंड फेथ जो है वो इससे हमें दूर रहना चाहिए। रीजनिंग होनी चाहिए, रिमूवल ऑफ फियर होना चाहिए, सीखने की और चाह होनी चाहिए कि हम और आगे सीखें। तो ये चाह जो है वो भी गुरु तत्व की एक एस्पेक्ट है। और यही कारण है कि अगर हम कला जगत की ही बात कर रहे हैं तो कभी किसी ज़माने में 1 या 2 तोड़े टुकड़े होंगे, परन होंगे, आज भरमार है। उस ज़माने में 1 राग होगा, लेकिन आज कितने रागों की भरमार है, राग रागनियाँ। तो आप उसको किस तरह से हमने अलग अलग युगों में हर एक गुरुओं ने
हर एक शिष्य जो बाद में गुरु बन गया, और वो हर एक शिष्य गुरु नहीं बन सकता। ठीक है, टीचर बन जाएगा, लेकिन गुरु बनने के लिए बहुत उसमें एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, एक उसमें गहराई होनी चाहिए, मनन होना चाहिए, और एक कि आप मार्गदर्शक हो, मेंटर हो, गाइड हो, और वो अपने व्यक्तित्व से और लोगों को भी आप प्रोत्साहित करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले है कि कला सिखाती है आपको, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स सब सिखा देती है। मैंने कहा ना कि वो तो हमारी लिटरेचर और फिलॉसफी को भी सिखा देती है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, क्योंकि जब हम बात करें तो उसमें पुष्पों का वर्णन है, इसका वर्णन है, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपनी देश की ज्योग्राफी को ही आप देख रहे हैं कि और वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की, कौन से क्लाइमेट में क्या हो, सरसों फूल रहा है तो क्या, टेसू फूल रहे हैं तो कब हो रहा है, तो वो सब हमें ज्ञान मिलता है, जो कि हमें जो हम पढ़ते हैं इन अ फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन ये सब ज्ञान मिलता है। और लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा और अहम ज्ञान जो हमें मिलता है, वो है मानवता की। वो है कि हम कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर मैं हूँ और कोई हम, क्योंकि कोई भी कला में सभी लोग, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, वो सभी मिल कर के एक बहुत ही सशक्त परफॉर्मेंस होता है। उसमें कोई भी जाति के हों, कोई भी वर्ग के हों, कोई भी कम्युनिटी के हों, कोई भी इकोनॉमिक वर्ग के हों, हम लोग सब उस समय एक ही हैं। हम इंसान हैं, हम सब कला के पुजारी हैं और कुछ नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर ईश्वर हैं तो हमारे लिए सभी ईश्वर हैं, सभी। हम वही बात कर रहे हैं जो, और वो हमारी संस्कृत की जो श्लोक है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही तो सत्य है, लेकिन हम अलग अलग लोग अलग अलग किस्म से उसकी चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं। उसके रास्ते जो है, वहाँ पहुँचने के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्येय तो एक ही है। तो कहाँ है ये जो भेदभाव है, मतभेद है, ये हमने बनाया है, हम आम लोगों ने बनाया है, लेकिन हमारी कला जगत में इसे दूर करने की बात करती है हमेशा, और वो प्रमाण दे करके भी दूर करने की बात करती है, क्योंकि हमारे जो जितनी भी कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल लेजेंड्स हैं, उसी की कहानियों को लेकर हम आगे और उसके थ्रू वैल्यूज़ हम देते हैं। तो जब हम उसके थ्रू वैल्यूज़ दे रहे हैं तो हमें अपनी ही संस्कृति का पूरा ज्ञान मिलता है, क्योंकि हर एक कथा के अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है रीजन्स के हिसाब से। तो हमें कला में सिखाया जाता है कि आप हर एक का इंटरप्रिटेशन देखिए, सुनिए, और उसमें जो खूबसूरती है उसकी को देखिए और अप्रिशिएट कीजिए। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर एक जो है इंटरप्रिटेशन में उसकी अपनी खूबसूरती है, अपनी खुशबू है, क्योंकि फाइनली चीज़ वही आ जाती जो बेसिक मूल्य, जिसकी बात हमेशा हम शुरू से कह रहे हैं, हमारे सभी संस्कृतियों में कहा जाता है। बेसिक वैल्यूज़ है सेंसिटिविटी की, ह्यूमैनिटी की, यानी मानवता की, यानी संवेदना की, वो उसका कभी, वो सत्य की, अहिंसा की, उसका हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो गुरु का ज्ञान है, वो गुरु रहे या ना रहे, आज हमारे साथ पेरेंट्स हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, चले जाते हैं, लेकिन उसकी शिक्षा रह जाती है। उसी तरह से हमारे गुरु जिनसे हमने शिक्षा ली है, स्किल्स लिया है, और जिन्होंने कहा है कि आप एक्सेलेंस की तरफ जाइए, लेकिन ऐसा एक्सेलेंस भी नहीं कि आप लोगों को काटते हुए जाइए, काट मार करके जाइए, लेकिन
अच्छे रास्ता, सही रास्ता को अपनाते हुए ऊपर जाइए। उसका वो जो मार्गदर्शन वो दिया है और वो कहीं ना कहीं हमेशा है हमारे साथ, उन सबको नमन करती हूँ। मैं शुरुआत की थी एक वंदना से, और एक मैं अंत भी कर रही हूँ एक गुरु के चरणों की वंदना करके कि गुरुर नेत्रम गुरुर दीपम सूर्य चंद्रमा सो गुरु गुरुर देवो गुरुः पंथा दिग गुरु सह गति गुरु। ओम। ये है अरहत गीता का है, जिसमें कहते कि गुरु ही हमें नेत्र दे रही हैं, वही हमें प्रकाश दे रही हैं, वही हमें ज्ञान दे रही हैं, और उनके ये दोनों आँखें जो है वो सूर्य और चंद्रमा की तरह है। हमारे जीवन में हमेशा वो सूर्य चंद्रमा की तरह हैं। वो सभी देवताओं से परे हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सहगति हैं, हमारे साथ हमेशा है। वो हमारे साथ, वो हमारी आत्मा में जीवित हैं, उनकी सीख में वो हमेशा हमारे साथ है। तो इस श्लोक के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, वे जहाँ भी हों, जैसे भी हों, वो आज जो कुछ भी मैं हूँ उनके कारण हूँ। उनकी सीख जो दी गई है उसको ही लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सभी गुरुओं को नमन करती हूँ, और उस गुरु तत्व, जो ब्यूटी ऑफ द गुरु तत्व है, उसको मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं गुरुओं को चरण स्पर्श करती हूँ, और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और क्योंकि आप सभी में एक गुरु तत्व है, सभी में। कहाँ आपसे भी, जब आप लोगों के साथ जब आप बातचीत होगी, जब आपके प्रश्न आएंगे, उसमें बहुत सारे प्रश्न होगा जिससे मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखेंगे मेरे जीवन में जो जिस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन मैं भी आपके प्रश्नों से भी सीखूंगी। तो ये गुरु तत्व सीमित नहीं होती है, जितनी आपको लर्निंग की इच्छा होती है हो वही अच्छी, क्योंकि कभी देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। It is an ongoing process which stays with us right through our lives, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक। और मैं भारतीय शिक्षण मंडल को फिर से धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और आनंद अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी दर्शक गण और श्रोता गणों को भी धन्यवाद देती हूँ। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।